Hello everyone, so welcome to today's video. INI-CT results are just out and only 1 month is left for the upcoming NEET PG exam. And so in this video, we'll talk about the 1 month strategy for the upcoming NEET PG 2024, which is to be scheduled on 23rd June. Now, my name is Dr. Rishabh Jain. And I am Dr. Aman Tilak. We both have completed our MBBS from AIIMS New Delhi, and we both have our journeys as far as the PG entrance examination is concerned. The thing which we want to impart in this video is irrespective of what your rank has been in the INI-CT examination this time, it is very important to utilize your next 20-25 days remaining for the NEET PG examination to as to maximize your rank. Right. And थोड़ा सा मैं background देना चाहता हूँ. So Aman is my junior from AIIMS, and to be frank, Aman was not like a topper of his batch. If I can be more frank, not even the top 10, but he secured a rank of 455 in the first attempt during his INI-CT exam when he was appearing for the PG entrance. And I have brought Aman just to highlight this point that your past does not define your future. ठीक है, you have been a topper or not, it doesn't matter whether you can get a good rank or not. It is a totally different ball game. You are doing MBBS, you are hardworking, that is all that matters. You have that in you, so don't be disheartened by today's rank at all. ठीक है, so that is the main motive of my video for today. So we'll talk about a brief timeline to start with. So today is 25th May, the exam is on 23rd June. तो हम लोग मान लें कि आप ये वीडियो अगर 20 आज देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लेट भी देख रहे हैं, तो पहले हम लोग सेपरेट कर देते हैं लास्ट के 7 दिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, आपके लास्ट टाइम रिवीजन विच यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन. सो आपका लास्ट 7 डेज अलग कर दिए, बाकी बचे हुए 15 से 20 दिन डिपेंडिंग ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हैं. And all of you, if you have been following my videos on NEET PG space, so आप सब लोग जानते हैं कि मैं ये लास्ट 7 डे रिवीजन है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, बिकॉज मेरे सारे PG एंट्रेंसेस, इनफैक्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नीज में दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम PMT ऑल द वे टिल माई फेलोशिप एंट्रेंस एग्जाम्स. कि लास्ट 7 डेज में आपको एक बार पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है, जो कि आपने पूरे साल बैठ के कंसाइज की है. अगर सारी रिविजन नहीं हुई तो अच्छी रैंक नहीं आती. ठीक है, तो हम लोग ने ना डिवाइड कर दिया है उन बच्चों को जिनके टॉप 1000 रैंक का इस बार INI-CT में, और उन बच्चों को जिनके की 1000 से बाहर आई है रैंक. सो पहले हम लोग उनको एड्रेस करेंगे जिनके 1000 से बाहर आई है रैंक. तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आप देखो कि आपने गलती क्या की जिसकी वजह से आपकी रैंक पीछे है, या फिर क्या मिस्टेक्स रह गए, या फिर कौन से ऐसे वीक एरियाज है विच वी कॉल एज रेट्रोस्पेक्शन. एंड इसके बाद आप दूसरी चीज देखो कि पिछले 5 साल में नीट पीजी में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जहां पर ज्यादा हाई यील्ड है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, बल्कि और जो है क्वेश्चंस कम आ रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई वी हैव टिक्ड 7 subjects which are the most questions yielding from the past 5 years. So a big disclaimer, this table I have taken from Instagram. So a lot of free information is available on Instagram and I have taken it from there. And इसमें last 5 years, so 2018 से लेकर 2023 तक subject wise questions distribution बता रखा है. ठीक है, तो if we overlook it, so हमें at the outset चल जाएगा पता कि बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, माइक्रो, पैथ, PSM, surgery, obs gynae, these 7 subjects have 15 plus questions coming in. ठीक है, मतलब 15 into 7 100 plus होता है यार. ठीक है, 105 questions आपके बस 7 सब्जेक्ट से आएंगे और बाकी 12 सब्जेक्ट से आपके रिमेनिंग आएंगे 95 क्वेश्चन ना. सो दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू कीप इन माइंड. सो रेट्रोस्पेक्शन में क्यों बता रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन में क्यों बता रहा हूँ, कि अगर इन 7 सब्जेक्ट्स में से आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो देर इज स्टिल टाइम. अभी भी देर इज 1 मंथ. अगर आप इस टाइमलाइन के हिसाब से भी चलो तो देर आर स्टिल 15 to 20 days टिल यू कैन मेक दी 7 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग. एंड इन 7 सब्जेक्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. ठीक है, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज कि मुझे ये 7 सब्जेक्ट्स नहीं आते. नाउ द एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स, दीज 4 सब्जेक्ट्स इज दिस कि their syllabus is limited and the examiner can only ask question from that limited syllabus. Okay, I'm not talking about a random question like letrozole ki half life, or let's say this year INI-CT की न्यूक्लियर मार्कर पूछ लिया था एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का. मतलब these are random hits.
ठीक है, इनसे रैंक नहीं डिसाइड होती है आपकी. दीज आर क्वेश्चंस टू बी लेफ्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट योर कोर सिलेबस in your revision notes which you have mastered, which you cannot to make wrong Yes. in the examinations. in 7 subjects के at least previous year topics are to be read in depth and very thoroughly. ठीक है, in depth पढ़ना है इनको. now जो बाकी subjects हैं, तो अगर मैं बात करूं माइनर्स की एंड फोरेंसिक की, मतलब आई कॉल्ड देम रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स. ठीक है, मेडिसिन रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी. माइनर्स फोरेंसिक रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स हैं. सो फर्स्ट यू मेक योर 7 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, उसके बाद बारी आती है माइनर्स एंड एफएमटी. और ये आपको लो एफर्ट्स के साथ हाई रिजल्ट आउटपुट देंगे. यस, इनका कंटेंट लिमिटेड है एंड लाइक यू कैन फिनिश अ माइनर इन 6 आवर्स यार, 6-7 आवर्स में पूरा एक दिन में आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन आपने कैसे पहले पढ़ा था, आप आराम से कर सकते हैं. एंड हर एक माइनर से you'll get 5 to 6 questions, sometimes 8 as well. Forensic से 8 questions you'll get. ठीक है, so these are very very high. Don't leave your minors and these 7 subjects. This is my heartfelt request to all of you. ठीक है, if someone is asking कि क्या timeline होनी चाहिए for this last 1 month, ठीक है, I have made this timeline for you guys. So I've taken a total of 16 days now. ठीक है, because my theory थी last 7 days में तो दोबारा सारा रिवाइज करना ही करना है. So सर्जरी, मेडिसिन एंड ऑब्स गाइनी, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 15 प्लस क्वेश्चंस आने हैं. तो आई हैव गिवन 3 days ईच टू ईच ऑफ दीज बिग सब्जेक्ट्स. बट मेरी एक और शर्त है कि इन बिग सब्जेक्ट्स के साथ यू ऑल्सो रीड अ माइनर. साथ में क्लब करके पढ़ेंगे ताकि बोर्डम भी ना हो, सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाए. ठीक है, अलग से माइनर्स पढ़ेंगे तो मन नहीं करेगा. सो सर्जरी के साथ आई हैव क्लब सर्जिकल सब स्पेशलिटी, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थीसिया. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कोरिलेटेड एज वेल. मेडिसिन के साथ अगेन मेडिकल सब स्पेशलिटीज, मेडिकल माइनर्स एंड ऑब्स गाइनी के साथ रीड पीएसएम एंड फोरेंसिक एज वेल. ऑब्स गाइनी के लिए 3 दिन बहुत ज्यादा है. ठीक है, कम ही सिलेबस होता है ऑब्स गाइनी का, 3 दिन बहुत ज्यादा है. यू कैन इजिली एडजस्ट पीएसएम एंड फोरेंसिक देयर. नाउ फॉर द पैथ, माइक्रो, बायोकेम एंड फोरेंसिक एंड pharma, the second row I have given 1 day each, so total of 4 days. ठीक है, 1 into 4, total of 4 days. And ophtha ENT minors 1 day total. ठीक है, so 0.5 into 2 equal to 1. ठीक है, अब ऑफ्था ईएनटी में सम स्टूडेंट्स विल से कि सर ऑफ्था तो टफ है, मैंने पढ़ नहीं रखी. देखो, अगर ऑफ्था ईएनटी में से कुछ नहीं पढ़ाना भी तो छोड़ दो. ठीक है, अगर पढ़ रखा है एक बार तो रिवाइज करना है. बट ऑफ्था ईएनटी अगर एक भी बार नहीं पढ़ी, इफ यू हैवंट रेड ऑफ्था ईएनटी इवन वंस, देन यू लीव इट. ठीक है, दीज आर टफ सब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड, नॉट लाइक यू नो मेडिसिन जो कि आपने अच्छे से एमबीबीएस में भी पढ़ी होती है, प्रॉफ के लिए पढ़ी होती है. ऑफ्था ईएनटी इवन प्रॉफ्स के लिए स्टूडेंट्स रीड लेस. सो इफ यू हैवंट रेड, यू कैन लीव इफ यू हैव रिवाइज. एंड देन कम्स फिजियो एंड एनाटमी. Again, physio I think is a minor subject. Since you are now in internship, you already know the basic physiology. You can cover it even in less than 1 day. Anatomy, some students will say कि sir 1 day is less. Yes, it is less, but you have to squeeze in. There is no other choice. And anatomy में भी tough topics जो हैं, head and neck is a tough topic. Neuroanatomy is a tough topic. Embryo histology, easy, high yielding topics. Read them. राइट. अब मैं आप यहाँ पर ना 2 सजेशंस देना चाहूंगा. पहला ये कि ये देखिए 9 दिन, 4 दिन, 3 दिन डॉक्टर ऋषभ ने बहुत अच्छे से डिवाइड कर दिया है. लेकिन अब इसमें से आप थोड़ा सा सब डिवाइड करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स आपको लगते हैं जो कि ज्यादा कंसेप्चुअल है, जैसे मेडिसिन, सर्जरी हो गया, ओबीजी, मोर कंसेप्चुअल, वो आप स्टार्टिंग में रखो. जो आपको लगता है रटने वाले हैं वो थोड़े से टुवर्ड्स द एंड रखो, जैसे कि आपका पैथ, माइक्रो, फार्मा, फोरेंसिक. दूसरी चीज क्या है कि ये आपके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लेट्स से फिजियो एंड को 2 दिन दिया हुआ है, मैक्स आप 3 दिन यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 दिन तक आप मैक्स आपने दिया हुआ है, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते. मतलब अगर 70% भी कवर हुआ है तो छोड़ना है. हाँ, उसके आगे आप नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आपके इट विल एंक्रोच ऑन द टाइम व्हिच यू हैड टू स्टडी सम अदर सब्जेक्ट. राइट. एंड इनमें से व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस रीडिंग टिल 15th June, you know, I would say कि क्या क्या आपको अलग से हाईलाइट करना है, बिकॉज इन दिस शेड्यूल विच आई हैव मेंशन्ड, आई हैव केप्ट द लास्ट 7 days सेपरेटली. सो यू विल आस्क कि सर लास्ट 7 days में पढ़ना क्या है. सो जो लास्ट 15 days में आप फर्स्ट 15 days में पढ़ोगे ना, उसमें से यू विल हैव टू मार्क कौन कौन सी रट्टे वाली चीजें हैं,
which are things to be mugged up. Staging systems, classification systems, tables. For example, microbiology में रिकेट्सिया की tables हैं. पीडियाट्रिक्स में आपका माइलस्टोन्स कितनी बार पूछा जाता है, हर बार एक क्वेश्चन आएगा, everybody will forget it. और तीसरी चीज हाइलाइट्स ऑफ द टॉपिक विच यू वांट टू रिवाइज. तो मान के चलिए ये जो आपके पास 15-20 दिन है, इसमें आप हाईलाइट या फिर पहले हाईलाइट किया हो तो आप स्टार मार्क कर लो, जिससे आपके नेक्स्ट जो 7 दिन है लास्ट वाले, उसके लिए आपको ऑलरेडी पता हो कि भाई इस सब्जेक्ट का मुझे 1.5 घंटा मिलेगा लास्ट के 7 दिन में, तो मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज करना है. एग्जैक्टली. तो अब ये जो मैंने स्केड्यूल बनाया है ना, सो 3 days, 4 day, 1 day, 1 day. Now this can obviously vary depending upon your own preparation. You know, you cannot lie to yourself. You have to be true to yourself. ठीक है. मुझे डॉक्टर रजत जैन की बहुत अच्छी बात लगती है ये, कि सर ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि यार you cannot lie to yourself. And this I wholeheartedly believe कि you cannot lie to yourself. You know what your weak subjects are. You know what your strong subjects are. तो जो strong subjects हैं, मैं बोलता हूँ अभी के लिए स्किप कर दो. लास्ट 7 days में वी विल रिवाइज अगेन. बिलीव योर मेमोरी, बिलीव योर कंसेप्ट्स, हो जाएगा यार, हो जाएगा रिवाइज. अभी जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली वो 7 सब्जेक्ट्स में से अगर कोई वीक है, दिस इज स्टिल अ गुड टाइम टू मेक इट स्ट्रॉन्ग. अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है. बिल्कुल. अब हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जिनके की जो रैंक है 1000 से कम आ रही है. तो पहली चीज तो ये कि आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ गुड रैंक. काउंसलिंग में आप डेफिनेटली अपियर करना. आपको मेनली क्या करना है, जो भी आपके वीक टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको आप रिवाइज कर लो जितना भी टाइम बचा है, और लास्ट 7 days का स्टैंडर्ड जो आपने पहले INICET के लिए पढ़ा होगा वैसे ही आपको प्लान करके वापस से रिवाइज करना है. एग्जैक्टली. काउंसलिंग में पार्ट लीजिए. जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, मतलब आई थिंक यू नो व्हाट टू, मतलब this video is not really for you guys. I think you are on a right track. You know what to do. Just keep doing it. ठीक है. The main thing is to revise everything now again. एक cycle of revision दोबारा कर लो. Now somebody will ask me, सर पढ़ना है, पढ़ना क्या है? तो आपने बोल तो दिया ये टाइमलाइंस है, 3 दिन में पढ़ना है, 1 दिन में पढ़ना है, बट पढ़ना क्या है? तो देखो, मेन वीडियोस और नोट्स नहीं पढ़ने हैं. ठीक है, उनका टाइम नहीं है. वीडियोस तो मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा अभी. इवन रिविजन वीडियोस भी मैं नहीं बोलूंगा. आई वुड से रिविजन नोट्स विल बी द थिंग. रिविजन नोट्स एक्चुअली करंट में मार्केट में ना अच्छे आ गए हैं. मतलब 2-3 years बैक रिविजन नोट्स भी थोड़े लैकिंग थे, थोड़े लैक्यूने थे उनमें. करंट रिविजन नोट्स आर गुड, एंड दे आर गुड बिकॉज उनमें ना PYQs इनकॉर्पोरेटेड है, या PYQ रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं. एंड सब चीजें टैबुलर फॉर्म में दे रखी हैं. अच्छे से यू कैन रिवाइज इट. नाउ अब दूसरी चीज आती है, सर क्वेश्चंस कौन से करने हैं? मेन क्वेश्चन बैंक करना है, PYQ करना है. सो देखो, PYQ करने में ना टाइम नहीं लगता. PYQ ये नहीं मैं बोलूंगा कि PYQ में आप डिस्कशन भी, यू रीड द क्वेश्चन एंड द एंटायर डिस्कशन. नो, दैट इज नॉट टू बी डन. क्वेश्चंस एंड आंसर. योर मेन एम टू डू PYQs टू नो कि ये टॉपिक आया है, और ये अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया तो ये गलत नहीं होना चाहिए. दैट इज द ओनली एम. डू नॉट रीड डिस्कशन, because that will take away your time from reading your revision notes. एक क्वेश्चन में आधा घंटा, एक घंटा भी लग सकता है अगर आप पूरा पढ़ने लग जाओगे. जो नहीं कर सकते आप, नहीं है, नहीं करना है. और बल्कि आप टाइमर लगा के क्वेश्चंस का जो है वो डिस्कशन कर सकते हो कि लेट से आपने 3 घंटे में पेपर लगाया, उसमें भी 2.5 घंटे का आपने टाइमर लगाया, कोई भी प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाया, और उसका डिस्कशन के लिए आपने लेट से 6 घंटा दे दिया अपने आपको, उतना आपने टाइमर, उससे ज्यादा जाने ही नहीं. एंड PYQ कितने साल के करने हैं? एटलीस्ट 3 years, आइडियली 5 years. ठीक है. नाउ दूसरी बात आती है कि सर क्या मेन क्वेश्चन बैंक करना है कि नहीं? सो इसका मेरे पास आंसर है कि यू मेक कस्टम मॉड्यूल्स. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग दैट डू ओनली PYQs. PYQs करने से आई थिंक आप लोगों ने कर भी लिए होंगे. अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं करने, क्वेश्चन करने भी हैं. तो आप कस्टम मॉड्यूल्स बनाओ 100 क्वेश्चंस के पर सब्जेक्ट. ठीक है. अब जो ये मैंने टाइमलाइन दे रखी है 3, 2, 1 जो भी दे रखा है, जब भी आप एक सब्जेक्ट कर रहे हो तो एक कस्टम मॉड्यूल स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट में करो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ सब्जेक्ट, एंड एक कस्टम मॉड्यूल आफ्टर रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट फ्रॉम रिविजन नोट्स तब करो. सो एक प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, एक पोस्ट टेस्ट स्कोर, सब आ जाएगा. प्री टेस्ट स्कोर, पोस्ट टेस्ट स्कोर, और उसमें ही आपको चल जाएगा पता कि अच्छा यार पोस्ट टेस्ट स्कोर में ये टॉपिक्स अभी भी वीक है, आई नीड टू डू देम अगेन. ठीक है. दैट इज इट. पूरा क्वेश्चन बैंक, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं करना, कस्टम मॉड्यूल बनाना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करने हैं, FWTs करने, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. ठीक है. दैट इज योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 days. नाउ देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स नाउ कि अभी अगर टॉप 5000 में रैंक लानी है नीट PG में, आई विल बेट अगर आप
नेक्स्ट 1 मंथ में 10 to 12 आवर्स पर डे अच्छे से पढ़ लिए, सिंसियरिटी से पढ़ ले, दिस इज माई गारंटी, यू विल गेट अ टॉप 5000 रैंक। ठीक है, दैट इज नंबर 1 प्री रिक्विजिट। सेकेंड इज हैविंग अ गुड कंपनी। यार बहुत फर्क पड़ता है संगति का, आप किसके साथ डिस्कस कर रहे हो चीजें, आपके कौन फ्रेंड्स हैं। It is said that you are the average of the 5 people Yeah. you hang around with ना, हाँ. तो दैट इज अ वेरी ट्रू सेइंग। मतलब अगर लाइफ में आपको लेट से आगे जाके कोई क्लिनिक खोलना है, तो यू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु वांट टू ओपन अप अ क्लिनिक यार। ठीक है ना, तो यू सराउंड योरसेल्फ लाइक माइंडेड लोगों के साथ, और जो Yes. अच्छी कंपनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है हैविंग अ स्टडी शेड्यूल। Now, this is one study schedule that I have repeatedly shared on my YouTube channel with a lot of students. I have already made a detailed video on this कि how to study for 10 to 12 hours per day. So, इसमें बस मेरा एक prerequisite है and my heartfelt request to you that please in the morning जो 3 hour वाला slot है ना, ये from 10:30 to 1:30 or 10 to 1 whatever, whether you are a morning person or a night person, ये 3 hour वाला slot is a mandatory slot because your exam is a 3 hour slot. You need to be active for the 3 hours during that exam. So अभी से आदत डालनी है उसकी। This 3 hour morning slot is very very important. And इस 3 hour में ना फोन होगा, साथ में कोई नहीं होगा, रूम पे अकेले होंगे या आप लाइब्रेरी में जाके 3 hours के लिए कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। एंड दिस इज योर मोस्ट हाई यील्ड स्टडी। ठीक है, दिस इज योर मोस्ट हाई यील्ड स्टडी। उसके बाद आप हाफ एन आवर का ब्रेक लो, 1 hour का ब्रेक लो, 1.5 hour 1.5 hours के सेशंस लो। देन अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि ये 7 to 9 वाला जो स्लॉट है ना, अगेन दिस इज योर हाई यील्ड स्टडी। नाउ बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल ना, यूट्यूब पे देयर इज अ लॉट ऑफ free material that is available, which is actually good, which is actually a passive learning. So what I suggest that you can during this 7 to 9 session can watch a YouTube revision video, like PW MEDED की एक PYQ based revision series भी आ रही है MEDED की। there is a PYQ based test and discussion which is free on YouTube फॉर एवरीबडी। ठीक है, 7 से 9 PM आप वो भी देख सकते हो, सारे PYQs उनसे रिलेटेड डिस्कशन भी वहीं से कवर हो जाएंगे। या फिर वो रात को भी देख सकते हो whenever you are sleeping, उससे पहले। बट अगेन दिस 7 to 9 PM स्लॉट, देन 1 घंटा या 1.5 घंटा हैव डिनर, टॉक टू योर पेरेंट्स, हैव अ वॉक अराउंड द कॉलोनी और इन योर मेडिकल कॉलेज, एनीवेयर वेयर यू आर स्टेइंग। देन लास्ट रात में इफ यूर नाइट आउल लाइक मी, अगेन 2 hours का स्लॉट फ्रॉम 10 to 12 एंड अगेन 12:30 to 2:30। एट द एंड आपका टाइम टेबल, आपको जैसे पढ़ना है पढ़ो, मेन चीज है पढ़ो। हाँ, मेन चीज है पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जैसे पढ़ सकते हो पढ़ो। एंड आई वुड ऐड वन थिंग कि जब लास्ट का जो 2 hour स्लॉट है ना, जस्ट बिफोर स्लीपिंग, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि जो नेक्स्ट डे आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उसके एक बार PYQs कर लो। ठीक है, फटाफट 2 घंटे में क्वेश्चन आंसर PYQ कर लो, ताकि जब आप नेक्स्ट डे यू स्टडी फॉर दैट सब्जेक्ट, यू नो कि ओके दिस टॉपिक इज वेरी एरियाज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मुझे ज्यादा ऑटोमेटिकली आपको पता आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ गुड टाइम टेबल which I recommend you can follow. Obviously the best timetable is the one that you make it yourself. Definitely. ठीक है, so this was an overview of the 1 month strategy for the upcoming NEET PG on 23rd June. If you have any queries, please mention them in the comment section. We both will be very happy to get back to you. So that's all from our side. Thank you. Thank you so much.